Hello my dear viewers. So far we have discussed in last video the procedure of finding the logarithm of any given number. And now in this video we will study how to determine the antilog of any given number. So the number corresponding to the given logarithm is basically considered as antilog. And for this we use the ready-made algorithm table, which is as similar to the previous logarithm table. Suppose we are given with any number that is log n. N can be any positive or negative number, and log of n is already given to us with the value 2.1253. Suppose this value is given to us. So any number whose logarithm is given, this number is considered as this number. If you want to find out the value of this n, so how can we find out this number? N is basically the anti-logarithm of this result. So n is anti-log of 2.1253. तो ये हमारा anti-log होगा. Now we will discuss how to find out the anti-log of any given number. तो कुछ प्रीफिक्स स्टेप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक दैट पॉइंट लोकेशन. जैसे हम अपने लॉग टेबल कैलकुलेशन में भी देखते थे, सो इन दिस वी ऑल्सो लुक द पॉइंट लोकेशन. पॉइंट लोकेशन के पहले वॉट एवर इज रिटन दैट नीड्स टू बी राइट हियर 10 raised to the power कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स. या इसको मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूँ कि बिफोर द पॉइंट इज whatever the given is considered as whole part, and after the point whatever is given, this is considered as decimal part. So what we need to do, we need to do 10 raised to the power whole part into value of what? Value of this decimal part, value of this decimal part, and this will be considered as the result of this antilog. इसको मैं antilog का result consider करूँगा. Now this value of decimal part जो मैं टेबल से लिखूँगा, that value should be in standard form. वो standard form में होना चाहिए. Standard form which means what? Standard form that means point must be placed after one digit. जैसे मैं लिख दूँ कि 2 6 5 7, तो ये standard form नहीं है. Standard form is what? Point needs to be right here 2.657. पॉइंट जो होगा वो एक डिजिट के बाद में लगाया जाएगा. दिस फॉर्म इज कंसिडर्ड एज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमारा जो एंटीलॉग का रिजल्ट होगा, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म. दैट मीन्स द एंटीलॉग ऑफ दिस विल बी व्हाट? 10 raised to the power whole, that means 2, into value of this. So this part is decimal part is what? 0.1253. So 0.1253. अगेन मैं इसको डिवाइड करूँगा. First 2 digit is considered as main part, second is considered as difference, and third is considered as main difference. ये तीनों पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, so you can check it on our previous video. उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं. मेन किसको कंसीडर करना है, डिफरेंस और मेन डिफरेंस क्या है. तो अब हम टेबल में चेक करेंगे एंटीलॉग के कि 12th रो में 5th डिफरेंस वैल्यू कितना है, और उसमें ऐड कर दूंगा मैं 3 mean difference. So now we will check in the antilog. So this is our antilog table, and in this antilog table this first column is considered as mean, this is difference, and these part are considered as what? Mean difference. So we need to check 1253. So 0.12, that means this 0.12 is located here. 0.12 के रो में मेरे को 5th difference value check करना है. So 0 1 2 3 4 5 5th difference value. 0.12 के रो में 5th डिफरेंस वैल्यू इज़ 1334, और इस 1334 में मेरे को ऐड करना है थर्ड वैल्यू. थर्ड डिफरेंस वैल्यू इज़ 1. सो 12 रो में 5th वैल्यू इज़ 1334 प्लस 1, इट विल बी 1335. तो हमारा जो रिजल्ट था दैट इज़ 1335. And this result needs to be right in which form? Standard form. Standard form, that means point needs to be placed after the first digit. So this will be the final result of this anti-logarithm. Anti-log of 2.1253 will be 10 raised to the power 2 1335.
तो इस प्रोसेस से हम एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम विल अराइज व्हेन द क्वेश्चन इंक्लूड एनी नेगेटिव वैल्यू। क्वेश्चन में जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तब हम उसका लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी एक परेशानी है। तो एक हम वैल्यू लेके चलते हैं, log ऑफ n इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.2467। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। वी कैन नॉट कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, एंड फॉर दिस वी नीड टू कन्वर्ट दिस नेगेटिव इनटू पॉजिटिव वैल्यू। इस नेगेटिव को मैं पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन देखते हैं। पॉइंट के पहले, बिफोर दिस पॉइंट, द वैल्यू इज रिटन विच इज़ व्हाट 1। तो इस 1 में मैं 1 ऐड करूँगा। सपोज पॉइंट के पहले लिखा होता 3 तो मैं उसमें 1 ऐड करता तो रिजल्ट होता 4, बट इन दिस सिचुएशन दिस इज़ 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ऐड किया हुआ, 2 सब्ट्रैक्ट किया हुआ, -2 + 2। To maintain the balancy of the equation we can add or subtract any constant value। तो मैंने given value में -2 + 2 ऐड किया हुआ, ठीक। Then this value is what, -1.2467। Now this -2 will remains as it is, then plus 2 minus 1.2467। अब मैं 2 में से 1.2467 को माइनस करूँगा। तो अगर आप 2 में से 1.2467 को माइनस करेंगे, सो योर रिजल्ट विल बी 0.7533। तो अभी हमारा नेगेटिव जो वैल्यू गिवन था, नाउ दिस नेगेटिव वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव पार्ट। अब बेसिकली ये हो गया मेरे पास -2.7533। अब इसका एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट होगा, सो द एंटी लॉग ऑफ दिस इज कैलकुलेटेड इन विच वे, 10 raised to the power what, this whole value is -2, then अब into 0.7533। 75 के कॉलम में थर्ड डिफरेंस वैल्यू चेक करेंगे। सो 75 का थर्ड डिफरेंस वैल्यू चेक होगा। दैट थर्ड डिफरेंस वैल्यू हमारे पास टेबल में दिख रहा हुआ है 5662, और फिर इसमें ऐड करूँगा मैं थर्ड डिफरेंस, मीन डिफरेंस वैल्यू, एंड थर्ड मीन डिफरेंस वैल्यू अंडर द कॉलम 75 इज़ 4। तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगे, एंड द एडिशन ऑफ दिस 2 विल बी 5666। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सो 5.666। सो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द पॉजिटिव वी विल हैव अ रिजल्ट। तो इस तरीके से हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ एनी पॉजिटिव वैल्यू इज़ ऑलरेडी गिवन, तो उसका डायरेक्टली हम होल पावर कैलकुलेट करेंगे इन दिस वे। डेसिमल पार्ट इज़ कैलकुलेटेड इन अ सेम वे जैसे हम लॉग में कैलकुलेट कर रहे हुए थे। तो इस तरीके से हमारे ये कैलकुलेशंस होंगे। आई होप को आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंटी लॉग कैलकुलेशन में अब परेशानी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे भी लिखा है 56.325, इसका भी अगर मेरे को एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, सो दिस एंटी लॉग विल बी 10 raised to the power 56 इंटू 32 का फिफ्थ मेन डिफरेंस वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट वैल्यू नीड्स टू बी नोट डाउन हेयर इन द डेसिमल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ -7.5231। इसका एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। और अगर आपको ये एंटी लॉग और लॉग के वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं।